Hello everyone, welcome to the Kumar Academy. I hope you all are fit and fine at your home in this tough time and are doing well. So in today's video we are going to discuss about class 9th science NCERT chapter number 1, that is matter in our surrounding. In our previous 3 videos we have discussed many concepts of the same chapter, and in this video we are going to discuss some new concept. So if you have not watched that previous videos, please go to our channel. All the videos will be available on our channel. So please watch part 1, part 2 and part 3 of the same chapter, and after that you can watch this video and all the concept will be very clear to you. So in this video what we are going to discuss, as you all know, in our previous video we are discussing about the conversion of state of matter from one state to another, right? So in the previous part that we have discussed that how the solid is converted into the liquid form. As you all know, there are interconversion of the states are possible. That means matter can be converted from solid state to liquid state and liquid state to gaseous state, and reverse process is also possible. That is called interconversion of मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब जो भी स्टेट्स होती हैं मीन्स वो आपकी इंटरकन्वर्जेबल होती हैं. लाइक आप सॉलिड को लिक्विड में भी चेंज कर सकते हो, लिक्विड को सॉलिड में भी चेंज कर सकते हो. इन द प्रीवियस पार्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड्स एंड डिफरेंट प्रोसेस वी हैव डिस्कस्ड. लाइक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट melting or fusion we have discussed, and we have discussed about the freezing or freezing point. Freezing is a process or melting is a process in which we can simply convert solid into the liquid form and vice versa, right? So in this video we are going to discuss about how liquid changes into the gaseous state. So please watch the complete video so that all the concept will be very clear to you. Without any further delay, let's get started. So the first concept of the day is vaporization. What is this? This is the process of converting a liquid into its vapor on heating, right? So the process or the phenomena in which liquids get converted into its vapor form on heating is called as vaporization. क्या होता है vaporization? कोई भी liquid अगर उसको हम heat कर रहे हैं, then what happens? It starts converted, it gets converted into its vapor form. वो क्या हो जाता है, अपनी vapor form में convert हो जाता है, और इस process को हम क्या बोलते हैं, vaporization बोलते हैं, right? So this is the process by which we can simply convert a liquid into its gaseous state. हम vaporization के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक liquid को उसकी gaseous state में transform कर सकते हैं by heating. और क्या होना चाहिए, हम कैसे convert करेंगे liquid को gaseous state में या फिर vapor state में, heat करके, right? क्लियर हो गया वेपराइजेशन क्या होता है. नेक्स्ट वी हैव टेकन सम एग्जांपल ओवर हियर. वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू द स्टीम. स्टीम इज व्हाट? स्टीम इज अ वाटर वेपर्स, आल्सो नोन एज वाटर वेपर्स. सो whenever we are heating the water, then water gets converted into the water vapor, and these are also known as steam, and this process is called as vaporization. In this what is happening, water is liquid form and it is getting converted into the gaseous state. Okay, so this is an example of vaporization. I think this topic is clear to you. Next, in this we are going to discuss that how the reverse process is possible. That vaporization is what? The process of converting a liquid to gaseous state by heating. वेपोराइजेशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, लिक्विड्स को गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में चेंज करते हैं बाय हीटिंग. अब कंडेंसेशन क्या है, बोथ आर रिवर्स प्रोसेस. सो कंडेंसेशन इज द फिनोमिना इन विच द लिक्विड गैसेस or the vapors of any substance get converted into the liquid form on cooling. Okay, so the phenomena in which vapors or gases converts into the liquid form on cooling is called as condensation or liquefaction. Okay, this is clear to you. क्या होता है कंडेंसेशन? ये कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन दोनों कैसी प्रोसेस हैं, रिवर्स प्रोसेस है, रेसिप्रोकल प्रोसेस है. वेपोराइजेशन में क्या होता है, हमारा जो सब्सटेंस होता है वो आपका लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में ट्रांसफर होता है, ठीक है. और कंडेंसेशन में क्या होगा, गैसियस स्टेट से सब्सटेंस आपका लिक्विड स्टेट में ट्रांसफर होगा. बस आपको कंडीशन रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लाइक यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है. तो कंडेंसेशन क्या होता है, किसी भी गैसियस फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस ऑन कूलिंग. कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, कूल डाउन करके, ठीक है. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं या फिर लिक्विफिकेशन बोलते हैं. क्लियर है? ओके, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं वेपोराइजेशन क्या होता है. बहुत इजी है.
वेपराइजेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा लिक्विड गैसियस स्टेट में कैसे ट्रांसफर होगा, ये कैसे कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे और उसका रिवर्स भी हम पढ़ेंगे कि हम आप गैसियस को लिक्विड्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो वेपराइजेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं, द प्रोसेस, इसमें क्या होता है, कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें हम लिक्विड को हीट करके उसकी वेपर्स फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। वेपर इज अ गैसियस स्टेट, ओके, उसकी वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं और उसको हीटिंग के थ्रू, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिया है, वाटर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वाटर वेपर्स में, ठीक है। और वाटर वेपर्स को स्टीम भी बोलते हैं। तो कैसे हो रहा है ये हो रहा है हीटिंग के थ्रू। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसमें वाटर आपका लिक्विड स्टेट में है और ये गैसियस स्टेट में ट्रांसफर हो रहा है और हीटिंग के थ्रू हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। क्लियर। इसका रिवर्स प्रोसेस हमने पढ़ा अभी, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी गैसेस स्टेट्स होंगी या जो वेपर्स होंगी उनको हम कूल डाउन करेंगे, ओके, उसको हम कूल डाउन करेंगे, तो जो हमारा गैसियस सब्सटेंस होगा, ये गैसियस फॉर्म होगी या वेपर्स होंगी, वो आपका लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। एंड दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी यूजफुल इन मैनी ऑफ द केमिकल एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे लेबोरेटरी में जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो बहुत सारी वेपर्स को या बहुत सारे गैसेस की वेपर्स को आपको क्या करना पड़ता है, कूल डाउन करना पड़ता है। तो वहाँ पे हम कंडेंसेशन यूज़ करते हैं या फिर लिक्विफिकेशन भी बोल सकते हो आप, बोथ आर सिमिलर टर्म। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। So please pause the video to make a note of it so that we can proceed for the next topic. Okay? So ज़्यादा जल्दी नहीं करना है, आराम से आपको रीड करना है सब कुछ, बहुत फ्लुएंटली आपको क्या करना है, टॉपिक्स को समझना है। 1 बाय 1 पार्ट वाइज वीडियोस अपलोड हो रही है, तो आपको सारे पार्ट्स को वॉच करना है, आराम से आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारे, राइट। सो लेट मी रीड दिस वन। Now we are going to discuss about that how the liquid gets converted. Is there any one process or there are multiple methods by which liquids can be converted into the gaseous form? तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स होते हैं जिसमें हम वेपराइजेशन कर सकते हैं या जिसके थ्रू हम लिक्विड्स को गैसियस स्टेट में चेंज कर सकते हैं। अभी देखते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं वो, ठीक है। So mostly the main topic of this video is कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू द गैसेस स्टेट। यही मेन कॉन्सेप्ट है आपका, ये क्लियर होना चाहिए। तो आपको पता है अभी हमने वेपराइजेशन डिस्कस किया, रिसेंटली वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेपराइजेशन, दैट मीन्स कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स गैसियस फॉर्म। नाउ हाउ कैन वी डू दिस कन्वर्जन, इज देयर एनी स्पेसिफिक मेथड, एक ही मेथड होता है या फिर और डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वो डिस्कस करेंगे हम। सो द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड into gaseous state can be brought by two methods. They are known as evaporation and boiling. So we need to discuss those two types of vaporization. So we are writing over here, vaporization is of two types. Vaporization is of two types. So what does it mean? It means we can convert the liquid into its gaseous state और the vapor state by two methods. हमारे पास दो methods हैं जिनसे हम liquid को gaseous state में change कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज बॉइलिंग। First concept is boiling. That is very common word. I think you have studied, you have listened this word in many times in your daily life as well. Like the water boils at 100 degrees Celsius, like the milk starts boiling. So this is very common term. Okay, boiling is what? It's write down the process of converting a liquid into gaseous state by heating at constant temperature. Constant temperature, okay, is called boiling. Clear?
So what is boiling? The phenomena or the process in which liquids get converted into the gaseous state on heating at a constant temperature is called as boiling. Boiling में क्या होता है, किसी भी लिक्विड को आप हीट कर रहे हो तो वो लिक्विड लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने हीट करना स्टार्ट किया और सडनली बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जब उस टेम्परेचर को आप अप्रोच करोगे तभी हमारा लिक्विड आपका बॉयल होना स्टार्ट होगा। दैट मीन्स वो लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? बॉइलिंग क्या होता है? कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें आपका लिक्विड गैसेस स्टेट में ट्रांसफर हो रहा है ऑन हीटिंग एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉइलिंग क्या होता है? एक बल्क प्रोसेस होता है। आई थिंक यू हैव सीन whenever you do the boiling of water, if you want to make a tea, then what you need to do, you need to boil the water. As you have seen, whenever the water starts boiling, then there is a bubble formation happens inside the water, and boiling is very fast process because the formation of bubbles happens only at the 100 degrees Celsius. Whenever the temperature approaches to 100 degrees Celsius, then water starts boiling and there is a rapid formation of bubbles take place in that liquid. So we can also define like this: boiling is a rapid formation of bubbles in the bulk of the liquid. बॉइलिंग क्या होता है? अगर आप किसी भी लिक्विड को बॉयल कर रहे हो तो उसके अंदर जो बबल्स फॉर्म होते हैं और वो फास्ट प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है? फास्ट। तो उसमें जो बबल फॉर्मेशन की प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा लिक्विड गैसेस स्टेट में ट्रांसफर होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग बोलते हैं। और बॉइलिंग होने के लिए क्या कंडीशन है? देयर इज अ वन कंडीशन मैंडेटरी, दैट द टेम्परेचर शुड बी इक्वल्स टू द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, द बॉइलिंग हैपन्स ओनली एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। सारे टेम्परेचर्स पे नहीं होती है, कुछ फिक्स्ड टेम्परेचर होते हैं जिस पे ही आपकी बॉइलिंग की प्रोसेस होती है। दैट मीन्स फॉर दिस वी नीड अ कांस्टेंट टेम्परेचर। आपको कन्वर्ट करना है, आपको बॉयल करना है, आपको लिक्विड को गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करना है बॉइलिंग के थ्रू, तो आपको क्या चाहिए? एक कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज जस्ट बॉइलिंग पॉइंट। Next is boiling point. What is boiling point? The constant temperature or the fixed temperature, the fixed temperature at which liquid starts converting or liquid starts converting into gaseous state, into gaseous state is called boiling point, is called boiling point. Just wait, is called boiling point. So please write it down all the things in your copy so that your notes will be prepared along with the classes. आपको अलग से नोट्स बनाने की नीड नहीं पड़ेगी। मैं एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, water boils at 100 degrees Celsius. Water boils at 100 degree Celsius. So as I have discussed, we have discussed that boiling occurs only at the constant temperature. एक particular temperature होगा जिस पे boiling होती, सारी प्रोसेस सारे टेम्परेचर्स पे बॉइलिंग नहीं होती। ठीक है। तो बॉइलिंग का आपको करनी है, आपको लिक्विड को बॉयल करके कन्वर्ट करना है गैसेस में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, एंड द पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच लिक्विड इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू इट्स गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। जो जिस टेम्परेचर पे आपका लिक्विड गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। Like we have taken the example, water boils at 100 degree Celsius. What it means? It means जैसे ही आप वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करोगे तो वो आपका लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, आई थिंक द आइडिया इज क्लियर। इज बॉइलिंग इज व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट इज व्हाट, राइट? So vaporization means the process of converting liquid into its vapor can be done by two methods. First method we have discussed, that is boiling, and it's a fast process. अगर आपको vaporization करना है तो बहुत fast अगर आपको करना है, then you will do the boiling process.
Okay, boiling is a fast process, or it's a very man-made process, in that you can maintain a fixed temperature at which liquid will start converting into its gaseous form. आपको अगर बहुत फास्टली किसी लिक्विड को गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करना है तो आप उसको बॉइलिंग के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हो, बट बॉइलिंग के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा जिस भी लिक्विड को आप हीट कर रहे हो उसके बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल। तो यहाँ पे जैसे वाटर को आपको कन्वर्ट करना है तो वाटर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होता है, दैट मीन्स जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। आई थिंक द आइडिया इज क्लियर, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, और यू कैन पॉज, यू कैन टेक द screenshot, that will be helpful for you. So next method we are going to discuss is evaporation. Okay, so now we are going to discuss the second method of converting a liquid into its vapor form or the gas state. Just wait, let me erase this. And all the things are very important, so please keep patience and watch the complete video so that everything will be clear to you. आराम से पढ़ना है आपको, पूरी वीडियो देखनी है, और कुछ अगर सजेशंस हैं आपके तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना है, ठीक है। कोई भी अगर डाउट्स हैं, जस्ट वेट, अगर आप कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्लियर नहीं होता है, देन प्लीज पोस्ट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल लेट यू नो द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम्स एज सून एज पॉसिबल। जैसे मैं कमेंट्स को रीड करूँगा, मैं डेली कमेंट्स को रीड करता हूँ, जो भी आपके कमेंट्स आएंगे वो मैं उनको, आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनका सॉल्यूशन एज सून एज पॉसिबल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, राइट। और अभी हम प्लान कर रहे हैं, रिसेंटली वी आर प्लानिंग टू क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप, इन दैट यू कैन पोस्ट योर सजेशन और यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम्स वट एवर इज द रिलेटेड टू योर सिलेबस। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, जो भी कुछ आपको पूछना है, इन दैट वी विल बी क्रिएटिंग अ डिस्कशन फोरम फॉर द स्टूडेंट्स। जो भी हमारा स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए हम डिस्कशन फोरम क्रिएट करेंगे व्हाट्सएप पे, वहाँ से वो डिस्कशन कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स है तो वहाँ से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इवेपोरेशन। Next concept is evaporation, right? What is evaporation? It is also the similar process. It is the way by which we can convert the liquid into the gaseous state, but it's a slow process. Okay, the phenomenon in which liquid, write down with me, liquid gets converted, liquids get converted into gaseous state, below its boiling point, below its boiling point is called evaporation, is called evaporation, or we can say evaporation. Okay, so what is the next method by which we can simply convert a liquid into its gaseous form? That is evaporation. The first method was boiling. Boiling क्या होता है, एक फास्ट प्रोसेस होता है अगर आपको लिक्विड को गैसेस स्टेट में चेंज करना। So evaporation is what? The phenomena in which liquids get converted into the gaseous form below its boiling point. That means कोई भी लिक्विड अगर लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, लाइक अभी वाटर है तो ऐसा नहीं कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे भी बॉयल होता है, उससे पहले भी वो क्या होता है, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। बट ये कैसी प्रोसेस है? इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इन दिस वी डू नॉट सप्लाई एनी काइंड ऑफ हीट टू द लिक्विड। हम इसमें क्या करते हैं, लिक्विड को कोई हीट सप्लाई नहीं करते हैं। जो भी आपकी आसपास की सराउंडिंग्स होती हैं वहीं से लिक्विड क्या करता है, वाटर को, जो भी लिक्विड होगा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा एंड इट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू द गैसेस स्टेट। क्लियर है क्या होता है? इट्स अ नेचुरल प्रोसेस बाय विच द लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसेस स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और यू कैन से एट ऑल द पॉसिबल टेम्परेचर, राइट। तो इवेपोरेशन क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हमारा लिक्विड आपका
गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। बॉइलिंग में क्या करना पड़ता है आपको, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम है बॉइलिंग की। बॉइलिंग एक फास्ट प्रोसेस है, मैन मेड प्रोसेस है। अगर आपको बॉइलिंग करना है तो आपको ह्यूमन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इवेपोरेशन कैसा प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है एंड इट इज स्पॉन्टेनियस। Then how it is useful, where it is happening? I think this process is very useful in your daily life. I think you have seen whenever your mama is just cleaning the floor, so what she do, she simply mops the floor, either she simply wash the floor by the water, she simply cleans the floor with the water, and after some times you see that the water which was spilled on the floor, जो water मम्मा ने floor पे spill किया था या जिससे clean किया है, that water get disappear, that water disappears. How the water get disappears, कैसे disappear हो जाता है वो सारा water सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो जब भी आपकी मम्मी फ्लोर क्लीन करती हैं या मॉपर से क्लीन करती हैं या वॉश भी करती हैं फ्लोर को, तो वो सारा वाटर जो हमारा फ्लोर होता है वो ड्राई अप कैसे हो जाता है, वो जो भी हमारा वाटर होता है वो सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करके अपने आप लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। लाइक यू हैव सीन मैनी टाइम्स व्हेनेवर वी आर पुटिंग आवर वेट क्लॉथ्स इन द सनलाइट, देन आफ्टर सम टाइम दे गेट ड्राइड अप। मतलब मीन्स जो भी हमारे गीले कपड़े होते हैं जब हम उनको वॉश करते हैं उसके बाद हम उसको सनलाइट में थोड़ी देर के लिए क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, तो जो भी हमारा लिक्विड होता है वो कहाँ चला जाता है, आपके कपड़े सूख जाते हैं, आपने देखा। सो हाउ दैट प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अप ऑफ द क्लॉथ्स हैपेंस, because sunlight gives the heat to the water and water absorbs the heat from sunlight and it simply evaporates from your clothes। वो आपकी क्लॉथ से क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके क्लॉथ्स कहाँ क्या हो जाते हैं, वाटर रिमूव हो जाएगा तो आपके जो क्लॉथ्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ड्राई अप हो जाएंगे। Another example we can take, I think you have studied about the cloud formation, right, in your geography or in the many times in the EVS or in the science। सो हाउ द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड गोज ऑन, कैसे होता है क्लाउड फॉर्मेशन। आपने देखा जो भी हमारा रिवर्स होती हैं, जो भी वाटर बॉडीज होती हैं, पोन्ड्स होते हैं, ओशंस होते हैं, उनसे क्या होता है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है। क्योंकि जैसे ही डे टाइम होता है तो आपकी सनलाइट हो सकता है 100 डिग्री हो या ना हो, या 30 डिग्री 40 डिग्री, इवेपोरेशन सारे टेम्परेचर्स पे पॉसिबल है। 30 डिग्री पे भी हो सकता है, 40 डिग्री पे भी हो सकता है। इसमें ऐसा कोई नीड नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करना है। देयर इज नो सच कंडीशन दैट यू नीड टू फिक्स अ टेम्परेचर। जैसे बॉइलिंग में क्या था, आपको बॉइलिंग करनी है तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे ही करना था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको किसी भी टेम्परेचर पे आप लिक्विड्स इवेपोरेट हो जाएगा। दैट मीन्स 30 डिग्री सेल्सियस पे भी स्टार्ट हो सकता है, 40 डिग्री सेल्सियस पे, इट कैन अकर एट ऑल पॉसिबल टेम्परेचर्स। तो जो भी हमारी वाटर बॉडीज होती हैं डे टाइम में क्या होता है, सनलाइट से वो हीट एब्जॉर्ब करती हैं और जो भी वाटर होता है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो इवेपोरेट होगा तो हमारा जो भी वाटर वेपर्स होंगी वो एटमॉस्फेयर में जाके कंडेंस हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आप हाई एल्टीट्यूड्स पे जाओगे तो वहाँ पे टेम्परेचर लो होता है और वो कंडेंसेशन के थ्रू लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और फिर वो क्लाउड बन जाता है। So evaporation is very helpful in many natural processes like cloud formation, drying up of the clothes or cleaning purposes of the floor. Many things you can correlate with, many examples you can correlate with। बहुत सारे ऐसे examples हैं जिनकी हेल्प से आप evaporation को क्या कर सकते हो, सिंपली कोरिलेट कर सकते हो। क्लियर है क्या होती है, ये नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें आपका वाटर गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है एट एवरी पॉसिबल टेम्परेचर। एंड आई एम राइटिंग दिस इज इवेपोरेशन, जस्ट वेट, इवेपोरेशन is a spontaneous process, is a spontaneous process। Spontaneous means which occurs by its own। कोई भी ऐसी प्रोसेस जो अपने आप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। बॉइलिंग कैसी थी, मैन मेड थी, उसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट मेंटेन करना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंड इवेपोरेशन depends on many factors such as
such as temperature, humidity, surface area, etc. Right? So we can say evaporation is what? It's a spontaneous process or it's a natural process, and it is depending upon many factors such as टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द सरफेस एरिया। मीन्स ये इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। अभी देखते हैं कैसे डिपेंड करती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारा हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू मेक अ नोट ऑफ इट एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो नाउ लेट्स रिकॉल द नेक्स्ट concept of the day, that is difference between the boiling and the evaporation. That is very common, and this question can be asked by the examiner in the many of the examination. बहुत बार पूछते हैं ये कि boiling और evaporation में क्या difference है, तो वो discuss करते हैं एक बार। okay, so let me erase this and after that we will be just waiting. Okay, so please be ready with your notebook and try to make all the notes during the classes only. जब भी classes हो, जब आप वीडियो वॉच कर रहे हो, तभी आप सारे नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आपके नोट्स भी रेडी हो जाएंगे और आपको टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। राइट? सो फर्स्ट इज बॉइलिंग and second column will be, I have told you, whenever we are writing the difference, then we need to use the column method. In this we will be writing evaporation and boiling. Just wait. Evaporation and boiling. So please make such column, जैसा मैंने कॉलम बनाया वैसा आप कॉलम ड्रॉ कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। कॉलम मेथड में बहुत बेनिफिट होता है। राइट? सो फर्स्ट पॉइंट, ओके, सो इन द फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट द डेफिनेशन एज वेल। आप फर्स्ट पॉइंट में डेफिनेशन भी लिख सकते हो। नॉर्मली हम डेफिनेशंस नहीं लिख रहे हैं, अदरवाइज डिफरेंस विल बी सो लॉन्गर। सो फर्स्ट यू कैन राइट बॉइलिंग occurs at a fixed temperature, called boiling point, right? सो बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होता है, मैंने आपको बताया था, और उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम? बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, टेक्स प्लेस, राइट इट डाउन, एट ऑल टेम्परेचर्स, right? So just wait, let me write all the things and after that I will be explaining you each and every point in detail. Just wait. So now let's recall the differences. What we have written on the board. So this is very important question, and this can be asked by the examiner in many times in the exams, whatever is the exams, school exams or the main examination. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच का डिफरेंस। सो मैंने 5 पॉइंट्स मेंशन किए हैं, आपको बुक्स में बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, अदरवाइज ये 5 पॉइंट्स आर सफिशिएंट, राइट? सो द फर्स्ट पॉइंट इज बॉइलिंग अकर्स एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। आई हैव टोल्ड यू टू डू द बॉइलिंग वी नीड अ कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। आपको बॉइलिंग करनी है, आपको बॉइलिंग के थ्रू लिक्विड को गैसेस स्टेट में ट्रांसफर करना है, तो आपके पास एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड इज evaporation takes place at all the temperatures. I have told you evaporation is a natural process, एक natural process होती है, तो ये सारे temperatures पे हो सकती है, 30 डिग्री पे भी हो सकती है, 40 डिग्री पे भी हो सकती है, 50 पे भी हो सकती है, 60 पे भी हो सकती है, सारे temperatures पे हो सकती है, right? Second is evaporation is sorry, just wait, I think we have done some wrong, just wait.
Now let's recall the points of differences between the evaporation and boiling. In the recently what we have done, the boiling we have written in the first column and we have written the evaporation in the second column. So we need to interchange. मैंने थोड़ा सा interchange किया है. फर्स्ट कॉलम में हम इवेपोरेशन के पॉइंट्स मेंशन करेंगे, सेकंड वाले में हम बॉइलिंग के पॉइंट्स मेंशन करेंगे, राइट. सो प्लीज मेक अ चेंज इन योर नोट्स, थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा. फर्स्ट पॉइंट में हमने फर्स्ट कॉलम में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर राइटिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ evaporation, and the second column we are writing all the points related to the boiling, right. फर्स्ट कॉलम में आपको evaporation के पॉइंट्स लिखने हैं, सेकंड वाले में आपको boiling के पॉइंट्स लिखने हैं. So let's discuss the first point of difference, which is it can take place at all the temperatures. जो आपका evaporation होता है, it is a natural process and it can take place at every possible temperature like 30 degree, 40 degree, 50 degree. Okay, so at all temperatures it can happen. But if we are talking about the boiling, boiling is a man-made process and it can occur only at a fixed temperature, that is called as boiling point. आपको अगर boiling करनी है तो आपको एक fixed temperature maintain करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, boiling point. boiling point पे ही boiling होती है, otherwise किसी temperature पे boiling नहीं होगी, ठीक है. evaporation is a slow and silent process. कैसा होता है, natural process होता है, slow होती है, ठीक है. so it's a slow process and silent process. it doesn't make any noise whenever the evaporation is going on. जैसे अभी आपने क्या किया, एक बकेट रखी है अपने बाहर, तो उससे जो भी अगर वाटर कोई भी इवेपोरेट हो रहा होगा, या जो भी हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, तो वहाँ से जो भी वाटर इवेपोरेट होता है, देन इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड इट डू नॉट मेक एनी काइंड ऑफ नॉइज. तो कोई भी नॉइज क्रिएट नहीं होती है जब इवेपोरेशन होता है, ठीक है. बॉइलिंग इज अ फास्ट एंड वॉयलेंट प्रोसेस. बॉइलिंग कैसा प्रोसेस होता है, फास्ट प्रोसेस होता है और वॉयलेंट होता है. आई थिंक यू हैव सीन व्हेनेवर यू आर डूइंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर एट होम और इन योर किचन. आप अपने किचन में वाटर को बॉयल करते हैं तो आप क्या देखते हैं, यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज अ नॉइज कमिंग आउट फ्रॉम द कंटेनर. उसके अंदर से क्या होता है, जब वाटर बॉयल होता है तो नॉइज आती है, तो ये नॉइज मेकिंग प्रोसेस होता है और बहुत फास्ट होती है. मैनी इंडस्ट्रीज दिस प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट. बहुत जगह पे ये प्रोसेस होती है. जैसे आपका जो भी वाटर इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े बॉयलर्स के अंदर वाटर की बॉइलिंग की जाती है. तो बहुत बड़ी लेवल पे बॉइलिंग होती है. तो वहाँ पे एक फास्ट प्रोसेस क्रिएट करते हैं हम लोग और ये नॉइज मेकिंग प्रोसेस होता है, राइट. इट्स अ सरफेस फिनोमेना, मीन्स जो भी हमारा इवेपोरेशन होता है वो केवल सरफेस से होता है. जैसे आपका एक रिवर है, तो जो भी वाटर इवेपोरेट होगा वो सरफेस वाला वाटर इवेपोरेट होगा, इनसाइड वाला नहीं होगा, राइट. इसमें क्या होता है, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना. आई थिंक यू हैव सीन व्हेनेवर यू आर डूइंग द बॉइलिंग ऑफ द वाटर एट योर होम, देन देयर इज अ बबल फॉर्म्स थ्रू आउट द लिक्विड. तो उसमें क्या होता है, पूरे लिक्विड में बबल फॉर्मेशन होता है. तो ये बल्क फिनोमेना आता है, पूरे लिक्विड में एक साथ होती है. इसमें क्या होता है, ये केवल सरफेस पे ही होती है. तो इवेपोरेशन कैसी होती है, सरफेस फिनोमेना होती है. सरफेस का ही वाटर इवेपोरेट होता है, इसमें पूरा वाटर बॉयल होता है. ऐसा नहीं कि सरफेस का ही वाटर बॉयल होगा, पूरा जितना भी वाटर आप बॉयल कर रहे हो पूरा वाटर आपका बॉयल हो जाएगा, राइट. इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. इवेपोरेशन इज नेचुरल प्रोसेस. इसमें आपको किसी भी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता है. इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप कपड़े सुखाने डालते हो बाहर तो वो सब वाटर अपने आप इवेपोरेट हो जाता है, हमको कुछ करना नहीं पड़ता है. वो कैसा प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है. आपका जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनसे जो भी वाटर इवेपोरेट होता है वो भी आपका नेचुरली होता है, ठीक है. बट इट्स अ मैन मेड प्रोसेस. ये ह्यूमंस ने क्रिएट की है, क्योंकि हमें बहुत सारी जगह पे बॉइलिंग करनी होती है. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, लाइक आपको अगर टी प्रिपेयर करनी तो आपको बॉइलिंग करनी पड़ेगी ना, अपने आप टी प्रिपेयर नहीं होती. तो आपका ये मैन मेड प्रोसेस है, ओके. एंड इट इज़ वेरी यूजफुल इन मैनी ऑफ द इंडस्ट्रीज. बहुत जगह पे यूजफुल होता है, इसलिए हम इसको क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट इज इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करता है. जैसे टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर लो है आपका, जैसे आपका एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम है, लाइक 40 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर है, तो इवेपोरेशन स्लो होगा. अगर टेम्परेचर आप राइज करोगे तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा. वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाना है. तो ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर. 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पे ये डिपेंड करता है. ह्यूमिडिटी क्या होता है, दीज आर द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. जो भी आपकी वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है. तो जैसे आपने देखा अभी समर सीजन चल रहा है, तो समर सीजन में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा कम होती है, सारी इवेपोरेट हो जाती हैं. बट रेनी सीजन होता है या फिर आपका विंटर सीजन में, वहाँ पे वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए उसकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, राइट. इसमें क्या होता है, इट डजंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड ह्यूमिडिटी. जो बॉइलिंग होती है वो किसी भी डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर
फिक्स होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट पे आप अप्रोच कर जाओगे तो अपने आप हमारा लिक्विड पूरा बॉयल हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द evaporation and boiling. Please pause the video to make a note of it. Either you can take the screenshot, that will be helpful for you. I think you have taken the screenshot. So this is all about your video. I think if you are getting any kind of help from this video, then please hit the like button, and if you are watching the video for very first time on our channel, then please subscribe to our channel, and please share this video as much as possible, because we need your love and support. Otherwise we cannot do whatever we are doing. So we are trying to provide you best content, so please support us so that most of the students will get benefit from this videos. जितने भी वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, अपने फेसबुक वॉल पे शेयर कीजिए, आप जहाँ पे भी जिस चैनल पे भी अटैच हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स वीडियोज़ का कॉन्टेंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बेनिफिट्स ले पाएँ। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आप इतने लंबे टाइम तक वीडियो देख रहे हैं, 30 मिनट्स का वीडियो आपने वॉच किया, इतने लंबे टाइम तक हमारे चैनल पे आके वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।